بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من اتبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ نائب فاعل وہ مفعول بھی ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے اکلا الخبز، روٹی کھائی گئی۔ اس میں فاعل یعنی کھانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے، اور الخبز نائب فاعل ہے جو حقیقت میں مفعول بھی ہے۔ نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے فعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ مرفوعات کی بحث چل رہی تھی کہ وہ کلمے کے جن کا اعراب رفع ہوتا ہے وہ کون کون سے کلمے ہیں۔ ان میں اول تو فاعل کا ذکر آیا، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دوم ہیں ان میں سے، یعنی دوسرا ہے ان میں سے نائب فاعل۔ نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل کا اعراب بھی رفع ہوتا ہے۔ نائب فاعل وہ مفعول بھی ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو۔ فعل مجہول آپ جانتے ہیں اور مفعول بھی کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ فعل مجہول کا فاعل تو ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کی نسبت کی جاتی ہے مفعول بھی کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو جو احکام ہوتے ہیں فاعل کے فعل مجہول میں وہ مفعول بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو جتنی وہ جو ہے سارے لاگو ہوتے ہیں مفعول بھی پر، اکثر ان میں سے۔ جیسے مثال کے طور پر اکلا الخبز، اکلا کھایا اس نے اور اکلا کھایا گیا وہ، اور خبز روٹی، اکلا الخبز کھائی گئی روٹی، ٹھیک ہے، روٹی کھائی گئی۔ اب یہاں پر کیا چیز کھائی گئی ہے اس کا تو ذکر ہے، روٹی کھائی گئی، کس نے کھائی اس کا ذکر نہیں، تو یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس فعل مجہول میں جو فعل مجہول کا مفعول بھی ہوتا ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، فعل مجہول کا جو نائب فاعل ہوتا ہے مفعول بھی ہوتا ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں الخبز یہ نائب فاعل ہے، کیونکہ اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے یہ فعل مجہول ہے، اور خبز نائب فاعل ہے جو حقیقت میں مفعول بھی ہے۔ اس فعل کا آپ غور کریں گے تو یہ مفعول بھی ہے، اور فعل مجہول کے مفعول بھی کو نائب فاعل کہتے ہیں، اور یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عربی والے مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے فعل کا مفعول جس فعل کا کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ غور کریں اس جملے پہ، اکلا الخبز کھائی گئی روٹی، تو یہاں پر کس نے کھائی اس کا تو نام نہیں لیا گیا، تو یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں فاعل کا نام نہیں لیا گیا لیکن مفعول کا نام لیا گیا ہے۔ تو الخبز ایسے فعل کا مفعول ہے کہ جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو عربی والے اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ یہ سمجھنے کی بات ہے، فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے میں نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے۔ خیر، اب سمجھیں، کیونکہ فعل مجہول جو ہے اس میں فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا اور مفعول کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ایک طرح سے جو ہے فاعل کا نائب بنا دیا جاتا ہے مفعول کو فعل مجہول میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اعراب بھی اکثر فاعل والے ہی ہوتے ہیں۔ تو فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے قام زید، اور کبھی ضمیر ہوتی ہے جیسے
अकलतु, खाया मैंने। इसी तरह नाइब फ़ाइल यानी फ़ेल मजहूल का मफ़ऊल भी, ये कभी इसमें ज़ाहिर होता है, जैसे उकिला अलखुब्ज़ु, जुमला गुज़र चुका है। और कभी ज़मीर होती है फ़ाइल और यानी नाइब फ़ाइल फ़ेल मजहूल की, जैसे मुदिहतु, मदहा तारीफ़ की उसने, और मुदिहा तारीफ़ किया गया वो, और मुदिहतु तारीफ़ किया गया मैं। अब यहाँ पर तू ज़मीर ये नाइब फ़ाइल है। इसी तरह दूसरा कायदे पर गौर करें, फ़ाइल कभी ज़मीर बारिज़ यानी ज़मीर ज़ाहिर होती है, जैसे अकलतु, अभी जो तू ज़मीर है ये ज़ाहिर है, लफ्ज़ों में बोली जा रही है। और कभी ज़मीर मुस्ततिर पोशीदा होती है, जैसे ज़रबहु, इसमें फ़ाइल यानी ज़रबा में हुआ ज़मीर फ़ाइल है, फ़ाइल हुआ ज़मीर है जो पोशीदा है। इसी तरह फ़ेल मजहूल के अंदर नाइब फ़ाइल कभी ज़मीर बारिज़ होती है, ज़मीर तो होती है ये हमने जान लिया, फिर कभी ज़मीर बारिज़ होती है जैसे मुदिहतु, और कभी ज़मीर मुस्ततिर होती है जैसे मुदिहा, ठीक है, तारीफ़ की गई, या उकेला, खाया गया। अब इसमें हुआ ज़मीर ये नाइब फ़ाइल है जो कि पोशीदा है। तीसरा कायदा, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़िल हमेशा मुफ़रद आएगा, जैसे ज़रबा अर्रजुलु, ज़रबा अर्रजुलानी, ज़रबा अर्रिजालु। इसी तरह जब नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, और ये बात याद रखें कि नाइब फ़ाइल और फ़ाइल फ़िल के बाद आएंगे, ठीक है। अब नाइब फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर है तो फ़िल हमेशा मुफ़रद आएगा, जैसे ज़ुरिबा अर्रजुलु, ज़रबा था ना, तो आप इसको मजहूल बना लें, फ़िल मजहूल, ज़ुरिबा अर्रजुलु, ज़ुरिबा अर्रजुलानी, ज़ुरिबा अर्रिजालु, ठीक है। कायदा, जब फ़ाइल ज़मीर हो तो फ़िल फ़ाइल के मुताबिक आएगा, जब फ़ाइल ज़मीर हो तो फ़िल फ़ाइल के मुताबिक आएगा, यानी वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, और जमा के लिए जमा। जैसे अर्रिजालु, अब यहाँ पर अर्रजुलु, माज़िरत, अर्रजुलु ज़रबा, ये अर्रजुलु फ़ाइल नहीं बन रहा है, ये मुब्तदा बन रहा है। जो ज़रबा में ज़मीर है हुआ ज़मीर, ये ज़रबा की का फ़ाइल बन रही है, ठीक है। अर्रजुलु ज़रबा, अर्रजुलानी ज़रबा, ठीक है। अब ये ज़मीर है फ़िल का, ठीक है। और अर्रजुलानी ज़रबा, अर्रिजालु ज़रबू हम। अब देखें जो वाव है ये जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, तो फ़िल भी जमा मुज़क्कर का लेकर आए हैं, ठीक है। इसी तरह जब नाइब फ़ाइल ज़मीर हो तो फ़िल फ़ाइल के मुताबिक आएगा, यानी वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, और जमा के लिए जमा। इसी मिसाल पर गौर कर लें, इसको आप फ़ेल मजहूल के बना लें, अर्रजुलु ज़ुरिबा, अर्रजुलु ज़ुरिबा, लड़का मारा गया, अर्रजुलानी ज़ुरिबा, अर्रिजालु ज़ुरिबू। फिर एक और बात हमने पढ़ी थी कि अगर जब किसी फ़िल का फ़ाइल ऐसी ज़मीर हो जो लौट रही हो जमा मुकस्सर की तरफ, तो उस वक्त फ़िल को जमा मुज़क्कर भी लाया जा सकता है और वाहिद मुअन्नस भी, और यानी वाहिद मुअन्नस भी लाया जा सकता है। जब फ़ाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो, जब फ़ाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो तो फ़िल को जमा मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। जब फ़ाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो, अब देखें ज़ुरिबू की ज़मीर कहाँ लौट रही है, ज़रबू की ज़मीर अर्रिजालू की तरफ, और ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर वो जमा की जिसमें वाहिद का वज़न बाकी न रहे, तो फ़िल को जमा मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह जायज़ है। इसी तरह जब नाइब फ़ाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो तो फ़िल को जमा मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। तो अर्रिजालु ज़ुरिबू भी बोल सकते हैं और अर्रिजालु ज़ुरिबत भी
बोल सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। आपने देखा कि अक्सर जो अहकाम हैं फ़ाइल के वो नाइब फ़ाइल पर भी जारी हुए हैं। तीसरा कलिमा जो मरफ़ू होता है, जिसके इराब रफ़ होते हैं, वो है मुब्तदा। आप जानते हैं कि वो लफ्ज़ कि जो दो कलिमों इजारे से मिलकर बने उसको मुरक्कब कहते हैं। फिर मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद के जब कहने वाला कहकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, और मुरक्कब गैर मुफीद जब कहने वाला कहकर खामोश हो तो सुनने वाले को कोई ख़बर या कोई तलब मालूम ना हो। फिर मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं, ठीक है, और कलाम भी कहते हैं। जुमले की दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके, ये आसान लफ्ज़ों में कि जुमला ख़बरिया कि जब कहने वाला कहकर खामोश हो तो सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम हो, यानी जिसमें किसी बात की ख़बर दी जा रही हो, ठीक है। फिर जुमला ख़बरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया कि जिसका पहला जुज़ फ़िअल हो और इस्म हो, माज़िरत, और दूसरा मुरक्कब है। अब देखें ना, जुमला इस्मिया ये भी मुरक्कब है, मुरक्कब की किस्म है। अब मुरक्कब कहते हैं दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनने वाला लफ्ज़। अब इसके भी दो जुज़ होंगे, तो इसी तरह जुमला इस्मिया के भी दो जुज़ होते हैं, एक जुज़ होता है मुस्नद इलैह और दूसरा जुज़ होता है मुस्नद। और जुमला फ़िअलिया के भी दो जुज़ होते हैं, पहला जुज़ होता है मुस्नद और दूसरा जुज़ होता है मुस्नद इलैह, ठीक है। आपने ये बात समझ ली। अब समझें, मुब्तदा ये भी मरफ़ू होता है, ठीक है। जुमला इस्मिया का पहला जुज़, अब समझ गए आप बात, जुमला इस्मिया का पहला जुज़, इसके दो जुज़ होते हैं। पहला जुज़ जो है वो मुस्नद इलैह होता है, उसको मुब्तदा भी कहते हैं, वही मुस्नद इलैह जुमला इस्मिया का, जिससे बात शुरू की जाती है, क्योंकि पहला जुज़ है, इसी से बात शुरू की जाएगी, जिसके बारे में कोई इत्तला दी जाती है, यानी ख़बर दी जाती है, मुब्तदा ख़बर। जैसे नसीमुन नाइमुन, नसीम सोया हुआ है, नसीम मुब्तदा और नाइमुन ख़बर। इसमें नसीम मुब्तदा है क्योंकि इससे बात शुरू की गई है और इसके बारे में सोए हुए होने की खबर दी गई है, जाहिर है। मुब्तदा को मुस्नद इलैह भी कहते हैं, मुस्नद इलैह यानी जिसकी तरफ इस्नाद की गई, एक कलिमे को दूसरे कलिमे की तरफ जोड़ना, इस तरह के बात पूरी तरह से मालूम समझ में आ जाए, जुमला पूरा हो जाए। तो नाइमुन जो कलिमा है इसको नसीम की तरफ जोड़ा गया है, इसकी इस्नाद की गई है और बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि नसीम सोया हुआ है, हुक्म लगाया गया है नसीम पर सोए हुए होने का, उसकी खबर दी गई है नसीम के सोए हुए होने की, ठीक है। तो मुब्तदा भी, खुलासा ये है कि मुब्तदा भी मरफ़ू होता है, ठीक है, मुब्तदा भी मरफ़ू होता है, और मुब्तदा जुमला इस्मिया का पहला जुज़ है जिससे बात शुरू की जाती है, ठीक है, और उसको मुस्नद इलैह भी कहते हैं, मुस्नद इलैह होता है असल में, उसको मुब्तदा भी कहते हैं, और इसके दूसरे जुज़ को ख़बर या मुस्नद भी कहते हैं। ख़बर, अब देखें ख़बर ये वही उसका जुमला इस्मिया का दूसरा जुज़ है, ये भी मरफ़ू होती है, पहला फ़ाइल मरफ़ूआत में, दूसरा नाइब फ़ाइल और तीसरा मुब्तदा, और चौथा क्या है, ख़बर। जुमला इस्मिया का दूसरा जुज़ है जिसके ज़रिए मुब्तदा के बारे में कोई इत्तला दी जाती है, यानी ख़बर दी जाती है। ऊपर वाली मिसाल में नाइमुन यानी ज़ैदुन नाइमुन, नसीमुन नाइमुन, मादिरत ख़बर है क्योंकि इसके ज़रिए नसीम के बारे में सोए हुए होने की ख़बर दी गई है, ठीक है, ये ख़बर है, उसकी ख़बर को मुस्नद भी कहते हैं, ठीक है, ये भी मरफ़ू होती है, ठीक है, ये बात जानने की। अब आप कहेंगे कि भाई जो मुब्तदा होता है, क्योंकि ये तो पहला जुज़ होता है, अब इससे पहले कौन सा आमिल आ गया कि जो उसको रफ़ा देता है, ठीक है, तो इस बारे में उलमा के मज़ाहिब हैं। साहिब किताब रहमहुल्लाह ने, यानी मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमहुल्लाह ने जो मज़हब इख्तियार किया है वो अपनी किताब में लिख दिया है। उनका ये है मज़हब के मुब्तदा और ख़बर का आमिल, इस बारे में इख्तिलाफ़ है उलमा का, ठीक है। मुब्तदा वो हम आगे की किताबों में पढ़ेंगे। मुब्तदा और ख़बर का आमिल मानवी होता है। आप यूँ समझें कि आमिल एक तो होता है लफ्ज़ों में, उसको आमिल लफ्ज़ी कहते हैं, और एक होता है आमिल मानवी जो लफ्ज़ों में नहीं होता। तो आमिल मानवी होता है मुब्तदा और ख़बर का आमिल। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह अलैह के नज़दीक ये मज़हब उन्होंने इख्तियार किया है, और भी मज़ाहिब हैं इस बारे में, वही दोनों को रफ़ा देता है। अब इन दोनों को कौन रफ़ा देता है, इस बारे में इन्होंने ये मसलक इख्तियार किया है। कायदा, मुब्तदा अक्सर
معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ معرفہ آپ جانتے ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور یعنی اس میں معرفہ جو وہ اسم جو کسی معین چیز کو بتلائے، اور اس میں نکرہ جو کسی غیر معین چیز کو بتلائے۔ جیسے مثال کے طور پر مان لیں کہ آپ کے سامنے 10 لڑکے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے بولوں کہ بھائی جاؤ لڑکے کو بلا کے لاؤ، تو آپ کہیں گے کہ بھائی سامنے 10 لڑکے کھڑے ہیں، کس کو بلا کے لاؤں؟ ٹھیک ہے، سارے 10 کے 10 لڑکے ہیں، کس کو بلا کے لاؤں؟ اب میں آپ سے کہوں گا کہ جاؤ نسیم کو بلا کر لاؤ۔ اب آپ ان 10 میں سے ایک لڑکے کو بلا کے لائیں گے جس کا نام نسیم ہے۔ اب آپ کہ ایک ایسی چیز کو بتلاتا ہے معرفہ جو معین ہوتی ہے، یعنی مخصوص چیز، خاص چیز۔ اور نکرہ جیسے کتاب، اب کتاب تو ساری کتاب میں آپ سے بولوں کتاب لاؤ، تو آپ کوئی سی بھی کتاب لائیں، میری بات پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہم پڑھ چکے ہیں، مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے پہلی والی جیسے یعنی اوپر والی مثال میں نسیم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص نام ہے، کسی خاص شخص کا نام ہے، اور نائم نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔